Okay, so introduction to microwave engineering. Now, if we talk about the field of radio frequency, or you can say microwave engineering, right? It generally covers the behavior of alternating current signals. Alternating current मतलब AC signals, ठीक है? So student remember one thing, जब भी हम लोग बोलते हैं कि first point is by RF frequency, okay? जब भी हम लोग ये रेंज में बात करते हैं RF frequency और you can say microwave frequency. So this RF or microwave frequency, what is the range of this RF or microwave frequency? It is a range of 100 megahertz to 1000 gigahertz. Okay, जो भी discussion होगा, जो भी device होगा, वो यही range पे काम करेगा, 100 megahertz to 1000 gigahertz. Is it clear? So this is what is the frequency range which we consider for RF frequency or microwave frequency. Okay. Now, अगर मैं बोलती हूँ कि RF frequency range, so RF frequency range is generally from very high frequency band to ultra high frequency band. ठीक है? Second is RF frequency. अगर specifically हम लोग सिर्फ RF frequency की बात करते हैं, तो RF frequency is very high frequency to ultra high frequency band. ठीक है, आपको frequency के band already पता है. We have studied these different frequency bands in antenna, so you already know which all the different frequency band. Okay, so if I say very high frequency band which is 30 to 300 megahertz, ठीक है, 30 megahertz to 300 megahertz, ये हो गया तुम्हारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. और अगर हम लोग बोलते हैं कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी है, तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड 300 टू 3000 मेगाहर्ट्ज, इसके आगे, राइट? मतलब 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 megahertz. This is what is ultra high frequency band. Okay, please remember this range क्योंकि अपना फर्स्ट टॉपिक यही है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड इन रेडियो स्पेक्ट्रम, वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट अभी व्हाइल माइक्रोवेव, अभी अगर हम लोग माइक्रोवेव की बात करते हैं, सो माइक्रोवेव इज द नेक्स्ट रेंज ऑफ दिस. अगर मैं बोलती हूँ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, then what is the range of microwave frequency? The range of microwave frequency is from 3 to 300 gigahertz, मतलब 3 gigahertz to 300 gigahertz. Okay, this is what is the range of microwave frequency. Okay, so please remember this frequency range. Okay, so next point is, अभी क्या होगा कि अगर हम लोग इफ वी टॉक अबाउट द वेवलेंथ फॉर दिस, ठीक है, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अगर हम लोग वेवलेंथ चेक करने जाते हैं, तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो चेक करो कि अगर 300 गीगाहर्ट्ज है तो उसका वेवलेंथ कितना आएगा. वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बता रही हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ. तो चेक करो, गीगा मतलब 10⁹ एंड सी का वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 into 10⁸. So 3 into 10⁸ upon 3 giga, मतलब 3 into 10⁹. How much is the frequency? Sorry, how much is the wavelength you get? Yes, anyone? Check करो. 0.1 में. Yes, yes. 0.1. 0.1. Okay. तो it is in the range of centimeter और millimeters, right? तो ये जो है, ये जो signals है, so all this signal have wavelengths in the order of millimeter wave. ठीक है? So fourth point is RF frequency have wavelength in the range of centimeter, right? In the range of centimeter. And microwave इससे ज्यादा बड़ा frequency है. So microwave frequency have wavelength in the range of
in the range of millimeter. ओके, सो ये जो दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसीज है, इसमें हम लोगों को कौन से टाइप की वेव मिलती है? मिलीमीटर वेव मिलेगी. इज इट क्लियर? ओके, सो अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टैंडर्ड सर्किट थ्योरी के जो भी टर्म्स है, ये स्टैंडर्ड सर्किट थ्योरी के टर्म्स हम लोग ये हाई फ्रीक्वेंसी के जो टर्म्स है, ये हाई फ्रीक्वेंसी के नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? बिकॉज देयर इज नो करंट, समथिंग लाइक करंट, जो हम लोगों को करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे. तो अगर करंट वोल्टेज नहीं है तो आप कैसे यहाँ पे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, राइट? So for this reason we have to generate a special kind of a devices, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? कि डायोड्स अलग अलग बनेंगे, RF डायोड्स बनेंगे, देन वेवगाइड्स बनेंगे. So all this different type of a thing which we are going to use. Okay, so जैसे KCL KVL ये जो बेसिक है अपने सर्किट थ्योरी के, वैसे ही जो हम लोगों ने 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़े थे, ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन बेसिक है तुम्हारे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के, ठीक है? सो चलो पहले हम लोग 4 मैक्सवेल्स के इक्वेशंस देख लेते हैं. कौन से मैक्सवेल्स इक्वेशंस है? ओके, सो वेट अ मिनट. सो बेसिक्स फॉर माइक्रोवेव, just roll it down, wait, huh? Yeah, so the next topic is basics for microwave. ओके, माइक्रोवेव के लिए फर्स्ट बेसिक है अपना, दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन. जस्ट रिमेंबर दिस 4 इक्वेशंस, बाय हार्ट इट वेल. वी विल नीड दिस इक्वेशन लेटर ऑन. जब भी हम लोग वेवगाइड का इक्वेशंस देखने वाले हैं, उसमें आपको ये मैक्सवेल्स की इक्वेशन लगेगी, ठीक है? सो यस एवरीवन, मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू गिव द रिलेशन बिटवीन. This is the 4th time I'm teaching you Maxwell's equation. Maxwell's equations are used to find relation between. किसके और किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करता है ये? E बार फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड H बार फील्ड मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? सो लेट्स सी कौन से इक्वेशंस है मैक्सवेल के. देयर आर 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन. 2 फॉर्म हम लोग यूज करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन के लिए. एक जो फॉर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट फॉर्म, दूसरा फॉर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे उसका इंटीग्रल फॉर्म. सो पॉइंट फॉर्म एंड इंटीग्रल फॉर्म, these are the 2 forms of Maxwell's equation. Okay, so anyone, what is the first Maxwell's equation? Yes, CME student बोलो, what is the first Maxwell equation? Gauss law of electrostatic. क्या था? Gauss law. Yes. So what is Gauss law? Point form, del dot d bar is equal to rho v, right? This is what is the first Maxwell's equation. Okay, यही Maxwell's equation का integral form कैसे आएगा? Closed surface integral. Yes, closed surface integration of d bar into ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रेशन, मतलब ये कौन सा? वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डीवी. ओके, रो वी इंटू डीवी. ओके, यहाँ पे इसका जस्ट एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ आपको, जस्ट फॉर योर रिविजन. व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? इट इज गॉस लॉ of electrostatic. Student, I am not teaching anything new. This is what you have already studied in your lower semesters. ठीक है, यही सेम चीज मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ. That's the reason I am not giving any proof for this. You just have to remember the equation, right? So this is what is Gauss law of electrostatic first. और ये अगर मैं बोलती हूँ डेल डॉट, मतलब ये कौन सा ऑपरेटर है?
डेल डॉट मतलब कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं? Anyone? Divergence. Yes, right. Divergence is the operator which we are using over here. Right, good. So second, here I am using divergence theorem. Okay. So second point हम लोग use करेंगे. Anybody remember second equation? Second equation of Maxwell? Del dot B equals to 0. Yes, Point del dot, very good. Del dot B, point form. Good. Del dot B bar is equal to 0. Okay. इसी का अगर हम लोगों को इंटीग्रल फॉर्म लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते थे? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन of b bar into ds is equal to 0. Right? This is something which is known as Gauss law. ये भी Gauss law है. बट मैग्नेटोस्टैटिक का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का था. ये जो है ये किसका है? मैग्नेटोस्टैटिक. राइट? एंड हियर वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम. यहाँ पे भी हम लोग डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे. ओके ओके, सो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द थर्ड वन. Yes, anybody remembers third? कर्ल वाला हम लोग यूज करते थे. डेल क्रॉस ई बार इज इक्वल टू माइनस डीबी बार अपॉन dt. याद आया? टाइम वेरिंग फील्ड. ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म कैसा था? दिस इज व्हाट इज क्लोज लाइन इंटीग्रेशन. लाइन इंटीग्रेशन मतलब क्या आएगा? dl आएगा, ds आएगा या dv आएगा? Yes, DL. student. dl. Yes. Okay. And on this side you have to apply double integration. Double integration मतलब ds dv या dl? DS. Yes. ds. Thank God इतना तो याद है. Good, good. So closed line integration of e bar into dl is equal to minus dv bar upon dt into ds. Okay. इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? कर्ल ऑपरेटर यूज किया है. इज इट क्लियर? एंड डेल क्रॉस ई फैराडेज लॉ में आता है ना? यस यस, वही. एक मिनट. हाँ, यस, डेल क्रॉस ई इज फैराडेज लॉ एंड नेक्स्ट वाला होगा वो एम्पियर्स लॉ होगा. यस, मैंने गलती से लिखा है यहाँ पे. Right, so here we are going to use Faraday's law of electromagnetics. Okay, okay, good. And the fourth one, which is del cross h bar. अभी स्टूडेंट देखो, हम लोगों ने क्या बोला था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं? just to give the relation between electric field and magnetic field. right? देखो थर्ड इक्वेशन देखो. थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड है. देखो दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड. ओके, यहाँ पे देखो डेल क्रॉस एच बार. व्हाट इज डेल क्रॉस एच बार? फोर्थ मैक्सवेल्स इक्वेशन, जेसी बार प्लस जेडी बार. जेसी आपको पता है सिग्मा इंटू ई बार, जेडी आपको पता है डी बाई डी टी ऑफ डी बार. ओके, सो ये जो है ये आपका कौन सा इक्वेशन है? एम्पियर्स सर्किटल लॉ का इक्वेशन. ओके, डेल क्रॉस एच बार. यहाँ पे हम लोग यही सेम लिखेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच बार इंटू डीएल बार इज इक्वल टू, एच बार इंटू डीएल बार इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ जेसी प्लस जेडी. डबल इंटीग्रेशन बोल रहे हो मतलब यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा आएगा? डीएस ऑपरेटर आएगा. जेसी का मीनिंग क्या है? सिग्मा इंटू ई बार. जेडी का मीनिंग क्या है? डी बाई डी टी इंटू दिस होल ब्रैकेट इज नथिंग बट डीएस. ओके,
सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ, राइट। सेकेंड ऑपरेटर हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, कर्ल ऑपरेटर, डेल क्रॉस मतलब कौन सा ऑपरेटर है अपना, कर्ल ऑपरेटर। एंड थर्ड पॉइंट इज वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। याद है हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन, ईएमई में भी पढ़ा था कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। ओके देन एनी डाउट इन दिस, एक बार रिवाइज कर लो, चारों लॉज स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि प्रूफ में हम लोग ये चारों लॉ का स्टेटमेंट ही यूज करने वाले हैं। सी सो दिस आर द मैक्सवेल्स इक्वेशन। ओके सो यहाँ तक सबको समझ में आया मैक्सवेल्स इक्वेशन तक, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग कुछ थोड़ा डिटेल्स देखेंगे ईएमई के, जो हम लोगों को यहाँ पे लगने वाले हैं। सो टुडे वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी द बेसिक्स, ओके। देन कुछ डाउट है यहाँ तक, ये स्टूडेंट्स एनी डाउट टिल हियर, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स, कुछ भी डाउट रहेगा तो। No, ma'am. ओके गुड, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडिया कांस्टेंट्स, ओके। बेसिकली मैं आपको अलग अलग सिंबल्स पढ़ा रही हूँ, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडिया कांस्टेंट, तीन मीडिया कांस्टेंट रहते हैं। दिस मीडिया कांस्टेंट आर नथिंग बट प्रॉपर्टी, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी और मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कौन से है, म्यू, एप्सिलॉन एंड सिग्मा। एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू, म्यू, एप्सिलॉन, सिग्मा, किसी को याद है मीनिंग ऑफ म्यू? परमिएबिलिटी। यस परमिएबिलिटी, विशाल तुझा आवाज खूप हळू येतोय हा, permeability, permeability of medium, right? Generally you can see this in magnetic field. Epsilon मतलब permittivity, generally you can see this in electric field. And sigma, ये जो है sigma, सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ अ मीडियम। देखो ये सब प्रॉपर्टीज किसके हैं, तीनों प्रॉपर्टीज मीडियम के हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडियम के, ओके। सो आप माइक्रोवेव में इक्वेशंस डिराइव करते वक्त ये तीन टाइप के मीडिया कांस्टेंट देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशंस। ओके कौन से कंटिन्यूटी इक्वेशंस हम लोग देखेंगे, ओके ध्यान से सुनो स्टूडेंट, जो भी बता रही हूँ, तीन कंटिन्यूटी इक्वेशंस हम लोग ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन में लिखूंगी जे बार इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई बार। जे बार मतलब करंट डेंसिटी, ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गया। दूसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन बता रही हूँ, डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बार। एनीबडी रिमेम्बर्स व्हाट इज डी बार? डी बार इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके। और हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था डी बार इज इक्वल टू म्यू इंटू एच बार। So what is this? B bar is nothing but magnetic flux density.
ठीक है, ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों कांस्टेंट आपको याद रखने हैं। तीनों पीडिया कांस्टेंट यूज करके मैंने 3 इक्वेशंस लिखे हैं। इज इट क्लियर? सो प्लीज रिवाइज इट वंस। तीनों इक्वेशंस कौन से हैं? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। So let's start with the next one. Wait a minute, huh? ओके, सो इफ यू, अभी अपना मैक्सवेल्स का इक्वेशन खत्म हो गया। हम लोगों ने ये भी देख लिया मीडिया कांस्टेंट कौन से है, कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देख लिया। अगर किसी को मैक्सवेल का इक्वेशन चाहिए, काफी ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट ईएमई में थे, अगर नहीं है आपके पास इक्वेशन तो बोलो, when I will give you a notes, I will copy paste those Maxwell's equations proof for Maxwell's equation over here. ठीक है, so it is easy for you to revise. Okay, so student, आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप। वी विल नॉट कंटिन्यू मच क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में भी काफी स्टूडेंट आएंगे, अगेन वी हैव टू रिवाइज दैट पार्ट। ओके, सो आई जस्ट गिव यू रिगार्डिंग बेसिक्स of applications of microwave. Student, can you tell me what are the applications of microwave which we see in our day-to-day life? Yes, student. Anyone? What are the applications of microwave? Yes, कहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव यूज करते हैं? कम्युनिकेशन। फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में बेसिकली जो भी अपना ये मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, सो मोबाइल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? वी जनरली यूज माइक्रोवेव, राइट? मॉडर्न वायरलेस टेलीफोनी जो है विच इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेलुलर फ्रीक्वेंसी। आपने वायरलेस नेटवर्क तो होगा ही, आपको सेलुलर का स्ट्रक्चर पढ़ा ही होगा, राइट? तो ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेलुलर फ्रीक्वेंसी रीयूज, ये जो सब पूरा टेक्निक है, ये पूरा टेक्निक modern wireless communication is completely based on microwave technology. Okay, then there are wireless security systems which we generally use, which is also the application of microwaves, right? Then हम लोग radar system use करते हैं, right? Radar system is also a application of microwave, right? Then you can say remote sensing और medical systems जो हम लोग use करते हैं, even these are the examples of microwave, right? radar system में बता सकती हूँ microwave कहाँ पे use होता है? yes, radar system कहाँ पे यूज होता है? बेसिकली सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रडार कहाँ पे यूज होता है। radar is basically used in military, commercial application and scientific field, right? वहाँ पे radar यूज होगा। so radar is used for detecting or locating air or ground or sea going targets, ठीक है? टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रडार यूज करते हैं। Apart from this, we use radar for missile guidance and fire control. इसके लिए भी रडार का यूज होता है, ठीक है? कमर्शियल सेक्टर मतलब एयरपोर्ट जनरली, वहां पे रडार किसके लिए यूज होता है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल, या जो मोशन डिटेक्टर्स होते हैं, या तो व्हीकल कोलिजन अवॉइडेंस, और ये सब डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ पे सब कुछ हम लोग रडार यूज करते हैं। ये तो हो गया, ये रडार का हो गया कमर्शियल एप्लीकेशन। साइंटिफिक एप्लीकेशन में रडार कहाँ पे यूज होता है? पता है ना, वेदर प्रेडिक्शन के लिए रडार यूज होगा, या तो रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होगा, सो मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है। सो ऑल दिस आर द यू कैन से साइंटिफिक यूज ऑफ रडार, ठीक है? माइक्रोवेव रेडियोमेट्री में वी यूज पैसिव सेंसिंग ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी, राइट? सो वहां पे भी हम लोग ये माइक्रोवेव का रेंज का यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस,
WLAN जिसको हम लोग बोलते हैं, what is the meaning of WLAN? It is wireless local area network which provide high speed networking between computers over a short distance, right? This is something which is known as a WLAN. So यहाँ पे for wireless communication technology we use UWB radio. UWB is ultra wideband radio, ठीक है? So ये जो उसके ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी होता है, ये ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी भी माइक्रोवेव के रेंज में आएगा. Okay, apart from this we use microwave in the range of satellite systems also. सैटेलाइट के लिए वॉइस डेटा सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सैटेलाइट, तो वहां पे भी अपना ये माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी यूज होता है, राइट? सो मेन एप्लीकेशन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं विच इज सैटेलाइट, सेकंड इज तुम्हारा माइक्रोवेव वायरलेस कम्युनिकेशन, and third one is your radar. So these are the three main applications of microwave engineering, you can say, which you find in your day-to-day life. Okay, so this is what is the thing. Fine. ये तो हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा, और एक पॉइंट हम लोगों ने इसमें से देख लिया. Okay, any doubt over here? Yes, student. No, ma'am. ओ मैम. Okay, fine. मैम हाँ बोलो बोलो. शिवा के घर पे लाइट गया है तो फिर वो वापस सौरभ, सौरभ आप ऑडिबल नहीं हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है. चैट बॉक्स में टाइप करना क्या बोल रहा था. चैट बॉक्स में टाइप करेगा प्लीज.